हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे ना। तो चलिए सर्कल की और एक इम्पॉर्टेंट आइडिया लेकर मैं फिर लौट आया। क्या है? व्हेन द सर्कल पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, then what is the equation of the circle? How shall I find the equation of the circle? If the circle passing through 3 points, मान लीजिए 3 points given है, can I find the equation of the circle? Yes sir, you can find the equation of the circle if the circle passing through the 3 points. How you can? So let's start. Okay, so देखो, so let us consider the general form of the circle. क्या है? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Always you just consider the general form of the equations. You know that this is the general form of the equation: x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c, and from here the center is minus g comma minus f, and root over g square plus f square minus c is the radius of this circle. ये तो सब पता है। तो चलिए, तो क्या सपोज मान लीजिए कोई सर्कल की जनरल फॉर्म, अब यहाँ पे जस्ट आई एम कंसिडर कर लिया। ओके, so now if this circle passing through suppose 3 points, क्या है? a 1,0 मान लीजिए 1,0, b क्या है? मान लीजिए b 0,1 और c 1,1. Suppose I am considering that this a circle which is passing through 1,0 0,1 1 1. Find the equation of the circle. ठीक है? How? So just you think that since this circle passing through this point, so obviously this point satisfy this equation. Obviously. So just you put this point a 1,0. So x क्या होगा? 1 की स्क्वायर 0 2g into 1 plus y 0 मतलब 0 plus c equals to 0. So क्या आ रहा है? 2g plus c plus 1 equals to 0. This is the first equation. ठीक है ना? Just I am putting this value, or again passing through point 0,1. So just you put 0, x would be 0 and y is 1. So therefore I am putting 0 plus 1 square plus, since x equals to 0, so 0 and 2f plus c equals to 0. So that implies 2a plus c plus 1 equals to 0. This is the second equation. ठीक है? और also this circle is passing through 1,1. So x equals to 1, y equals to 1 put कर दीजिए. 1 plus 1 plus 2g 1 मतलब 2g plus 2f plus c equals to 0. That implies 2g plus 2f plus c minus 2. ठीक है? तो देखिए, since the circle is passing through these 3 points, I am just putting the x coordinate, y coordinate. Okay, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Now you have to solve these three equations. Okay, you have to solve these three equations, and then you get z, f, and c. So, and then if I put g, f, and c की वैल्यू, तो भैया required equation तो मिल जाएगी। ठीक है? तो चलो देखा जाएगा। तो सॉल्व करबा की करे? This is the first equation, second equation, third equation. How shall I solve? So now I am adding this 1 and 2. ठीक है? Just you add 1 and 2, उसके बाद subtract करिए तो भैया चले आएगा। तो चलिए, just you add, just I am adding 1 and 2. Okay, तो ठीक है, तो मैं यहाँ, तो just I am adding 1 and 2. Okay, just you add 1 and 2. क्या आ रहा है? 1 and 2 ऐड करने के बाद 2g plus 2a plus 2c, यो 2g plus 2a plus 2c plus 2 equals to 0. तो देखिए 2g plus 2a plus 2c plus 2, मान लीजिए इसको 4, नंबर ऑफ इक्वेशन 4 ली। ठीक है? और देखिए 2g plus 2a plus c, क्यों क्या करना पड़ेगा?
To find C, if I subtract this from this equation, मतलब क्या है? मतलब है ये तो 3 नहीं लिखा. Equation number 3, I am just subtracting this equation from this. क्या हो? देखिए G वैनिश होकर C इक्वल्स टू 2, इधर जाने की बात क्या होगा? -2. सो -2 वैनिश हो जाएगा. -2 क्या आ रहा है? -2 अब -2 क्या आएगा? -2 + 2 मतलब 0. देखिए C की वैल्यू 0 आ रहा है. क्यों? 2G दिस माइनस दिस मतलब क्या है? 2G वैनिश, 2F माइनस है, 2F वैनिश, 2C माइनस C आएगा. और देखिए +2 इधर जाने की बात, इक्वेशन की राइट हैंड साइड जाने की बात -2. तो देखिए -2 माइनस ऑफ -2 भैया 0 आ रहा है. तो C की वैल्यू क्या आ रहा है? C इक्वल्स टू 0. क्लियर? और फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ आई पुट C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दीजिए, 2 पे पुट कर दीजिए, तो भैया क्या आ रहा है? 2F + 1 इक्वल्स टू 0, F इक्वल्स टू -12. और C की वैल्यू अब 1 पे पुट कर दीजिए, G की वैल्यू क्या आ रहा है? D की वैल्यू सिमिलरली -12 आ रहा है. देखिए कोई प्रॉब्लम? तो फर्स्ट टाइम जस्ट आई एम पुटिंग दिस 3 वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल, देन आई एम गेटिंग 3 इक्वेशन. तो भैया 3 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद GFC आ गया, तो भैया जनरल फॉर्म में पुट कर दो, रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा. तो देखिए ठीक है, ओके. एक बार तो चलिए F और G की वैल्यू पुट कर दीजिए ना, क्या आ रहा है? तो देखिए जनरल फॉर्म क्या है? x² + y² + 2gx. G की वैल्यू क्या है? -12 × x + 2f. F की वैल्यू क्या है? -12 × y + c. C की वैल्यू तो 0. So that implies x² + y² - x - y equals to 0. This is the required circle. This is the required circle which is passing through 1, 1, 1, 0, 0, 1. ठीक है, एक बार पुट करके देखिए ना. 1, 1 पुट करिए तो भैया 0 मिल रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. 1, 0 पुट करिए 1 सेटिस्फाई हो रहा है. 0, 1 पुट करिए सेटिस्फाई. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू 1, 1, 1, 0, 0, 1. ठीक है भैया, एक बार देखिए, जब जनरल फॉर्म, इफ वी कंसिडर द जनरल फॉर्म, एक बार सोचिए जनरल फॉर्म में GFC 3 अननोन है, इसीलिए 3 इक्वेशन नीडेड. 3 इक्वेशन चाहिए, और 3 इक्वेशन के लिए 3 कंडीशन चाहिए भैया. तो इसीलिए 3 पॉइंट्स गिवन है. अदरवाइज सपोज अ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, कैन आई गेट द इक्वेशन? 3 इक्वेशंस चाहिए, 3 कंडीशन चाहिए बच्चों. 3 इक्वेशन नहीं तो GFC चाहिए, कैसे फाइंड कर सकते हो? ओके, तो इसीलिए 3 पॉइंट्स गिवन है. जस्ट यू पुट द इन द जनरल फॉर्म and you are getting the 3 equation, just you solve and you get CFG. just put कर देने की बात required circle मिल गया. ठीक है, तो चलिए और एक प्रॉब्लम देखिए. तो देखिए और एक important type problems क्या है? A circle which is passing through these 2 points. Okay, a circle which is passing through these 2 points 1, 2, 3, 0, and center lies on this circle, on this line. क्या है? एक सर्कल जो पास कर रहा है 1, 2 और 3, 0 से, and also the center of that circle lies on this line 3x + 4y = 1. तो then you have to find the circle की इक्वेशन चाहिए, रिक्वायर्ड सर्कल चाहिए. कैसे फाइंड कर सकते हैं? कैसे होगा सर? या ओके, तो हाउ शैल आई फाइंड दिस? तो जस्ट यू थिंक, एक बार खुद से ट्राई करिए बच्चों. देखिए पहले जो प्रॉब्लम है ना, 3 पॉइंट्स गिवन है. 3 पॉइंट्स मैंने तो जनरल फॉर्म में पुट कर दिया, तो 3 इक्वेशन आ गया. 3 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद GFC मिल गया. तो बच्चों पुट करने की
बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स नहीं है, 2 पॉइंट्स है, और एक कंडीशन सेंटर लाई कर रहा है दिस लाइन की ऊपर, मतलब 3 कंडीशन है। कैसे? अरे भैया जनरल फॉर्म तो कंसिडर करिए, जनरल फॉर्म में 1,2 पुट करिए, एक कंडीशन, एक इक्वेशन मिलेगा, और उसके बाद 3,0 पुट करिए और एक इक्वेशन मिलेगा। और देखिए सेंटर, जनरल फॉर्म में सेंटर, सर्किल की सेंटर क्या है, -g, -a, सिंस सेंटर लाइज ऑन दैट मींस -g, -a सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इक्वेशन आ गया, 3 इक्वेशन सॉल्व करिए, GFC मिलेगा, तो भैया सर्किल तो आ जाएगा। तो चलिए, जो लेट अस कंसीडर दिस, लेट अस कंसीडर द जनरल फॉर्म क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. This is the general form. Since it passes through 1,2, तो भैया पुट कर दो 1, x की वैल्यू 1, 1² + 2² + 2g into 1 मतलब 2g, 2f into y मतलब 4f + c = 0. ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है, 2g + 4a + c = -5. ठीक है, एक तो आ गया इक्वेशन। और देखिए सिंस दिस सर्किल पासिंग थ्रू 3,0, तो बच्चों 3,0 पुट कर दो ना। तो चलिए क्या होगा, 3,0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो 9 + 0 + 6g 2g into x 3 है, तो 2 into g into 3 6g प्लस y 0, तो बच्चों 0 होगा, प्लस c = 0, मतलब क्या है 6g + c -9 आ रहे, 6g + c = -9, इक्वेशन नंबर सेकंड। और देखिए कंडीशन 3 चाहिए, 3 कंडीशन चाहिए। अगर 3 कंडीशन नहीं मिल रहा है तो भैया रिक्वायर्ड सर्किल कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। तो देखिए दोनों तो कंडीशन आ गया, तो और एक कंडीशन देखिए, सेंटर क्या है, जनरल फॉर्म की सेंटर क्या, -g, -a, which satisfy this equation since center lies on that। मतलब क्या हम 3 into -g + 4 into -8 = 1 लिख सकता हूँ? Yes sir, because this center lies on that center -g -8। तो चलिए -3g - 4f = 1, क्या है 3g + 4f = -1। ठीक है, कंडीशन नंबर 3। तो देखिए anyhow 3 conditions would be given, otherwise you never can solve this type of problem. Okay, since actually GFC 3 unknown, तो भैया 3 कंडीशन चाहिए। तो देखिए, तो 3 इक्वेशन आ गया, तो सॉल्व करना होगा। तो चलिए सॉल्व करिए, कैसे हो सकते सर? देखिए 6g + c 6g + c, मैं यहाँ पे c की वैल्यू जस्ट इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, पुट कर दो इस इक्वेशन से c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे आप पुट कर दीजिए, टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या आ रहा है, c = -g - 6g, सॉरी c की वैल्यू क्या आ रहा है, -9 - 6g। ठीक है, और जस्ट यू पुट इक्वेशन नंबर 1, c की वैल्यू नंबर 1 पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ रहा है, सो पुटिंग c in 1, c की वैल्यू जो c आ रहा है ना, c की वैल्यू 1 पे पुट कर दीजिए, क्या आ रहा है 2g + 4f, और c क्या है -9 - 6g = -5। देखिए 2g + 4f -6g +4, क्यों -9 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो +9 - 5, तो 4। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ रहा है, तो देखिए 4f - 4g = 4, that imply f - g = 1,
तो देखिए f माइनस जी इक्वल्स टू 1 आ रहा है। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 3g प्लस 4f इक्वल्स टू -1। ओके, अब सोचिए इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो भैया ये तो इजी, तो चलिए माइनस जी और यह से 3 मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन 4 के साथ। 3 मल्टीप्लाई करने की बात क्या आया, क्या आ रहा है, -3g3। तो भैया सॉल्व कर दीजिए, तो क्या होगा 3g प्लस, यू जस्ट ऐड, आई एम एडिंग दिस टू इक्वेशन। तो बच्चों क्या आ रहा है, 7f इक्वल्स टू 2, तो f इक्वल्स टू 2/7, f इक्वल्स टू 2/7। तो f इक्वल्स टू 2/7 और उसके बाद f की वैल्यू आप कोई इक्वेशन में पुट कर दिए दो। तो देखिए, तो चलिए f की वैल्यू 2/7 आ रहा है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए बच्चों, 2/7 माइनस जी इक्वल्स टू 1, दैट इम्प्लाई g इक्वल्स टू 2/7 -1, मतलब -5/7, -5/7 जी की वैल्यू। तो देखिए g इक्वल्स टू -5/7 आ रहा है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है, 6g प्लस c -9। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे g की वैल्यू पुट कर दीजिए और c की वैल्यू आएगा, तो जस्ट यू पुट हियर g की वैल्यू क्या है, c इक्वल्स टू, दिस इक्वेशन से क्या आ रहा है, c इक्वल्स टू -9 माइनस 6g, 6 इंटू जी की वैल्यू -5/7, 6 इंटू जी की वैल्यू -5/7 क्या आ रहा है, -9 प्लस 30/7। तो देखिए एलसीएम करके क्या आ रहा है, -63 प्लस 30। ठीक है, तो क्या -33/7 आ रहा है। तो c की वैल्यू देखिए -33/7 आ रहा है, f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू 2/7, g की वैल्यू -5/7 और c की वैल्यू -33/7। g, f एंड c की वैल्यू आ गया। तो बच्चों g, c, f की वैल्यू जनरल फॉर्म में पुट कर दीजिए। तो पुट करने की बात देखिए, मैं तो यहाँ पे पुट कर दिया, x² + y² + 2gx + 2fy + c is equals to 0, this is the required equation। ओके, तो बच्चों g, f, c की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए g क्या है, -5/7, इसलिए -10/7 आ रहा है। f क्या है, 2/7, तो 2 × 4/7 आ रहा है। और c क्या है, -33/7। तो देखिए उसके बाद एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम करने के बाद 7x² 7y² -10x + 4y -33। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड सर्किल आ गया। तो बच्चों ठीक है, तो चलिए आज यहाँ पे ही खत्म कर रहा हूँ, फिर लौटूंगा और एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।